अमेरिका ने आईएसआईएस पर, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। आईएस के ठिकाने पर अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान में आईएसआईएस पर अमेरिका ने यह बड़ा हमला किया है। यह बम अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकानों पर गिराया। वहां के आईएसआईएस के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की गई है। और यह बता दें आपको, अमेरिका ने GBU-43 नाम के इस सबसे बड़े गैर परमाणु बम का इस्तेमाल पहली बार किया है। पहली बार इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है। 21,000 पाउंड वजनी बम अमेरिका ने आईएस को निशाना बनाते हुए वहां पर गिराया है। Areas of practical cooperation such as defeating ISIS and areas where Russia does not share our interests and values. As you know, the Vice President will be departing for his 10-day trip to South Korea, Japan, Indonesia, and Australia on Saturday morning. His office will be providing more information later today. Finally, I'm glad to announce that the President will host the Prime Minister of Italy for an official working visit to the White House next Thursday, April 20th. The leaders will discuss the upcoming G7, which will be hosted in Italy and Sicily, and a range of issues of mutual concern. With that, I'm glad to take some of your questions. Sean, where is the administration on cost-sharing subsidies for insurance companies? That is an area that is being internally discussed at this time. Undecided? It's not undecided. There is an ongoing discussion on that matter. Matt. Thanks, John. The last few days have seen a number of policy shifts by the president on China as a currency manipulator, the XM Bank, the order of doing healthcare and taxes. There's more, but I won't belabor the point. What should the American people make of these shifts, and are there any policy areas that are non-negotiable? Well, I think, respectfully, I think you can look at what you're referring to as a shift in a lot of ways, and by that I mean I saw a couple instances with respect to NATO being one of those shifts yesterday, and if you look at what's happened, it's those entities or individuals in some cases or issues evolving towards the president's position. And NATO in particular, he talked about the need of countries to pay their fair share, to live up to their commitments of 2% of GDP. He talked about the need for NATO to focus more on terrorism. NATO has done just that. And it is something that he pointed out in the first debate in September of last year. He talked about the fact that that NATO is moving towards what he has been calling for. And I think in some cases, the issues evolve, that it's not just a clear and fast statement that this is, that the entity itself is moving towards his, or the issue is evolving towards the position that he articulated. And that can't be proven more true in the case of NATO, where he laid out two very clear positions that he had an issue with NATO, and as far back as September of last year, started to recognize that institution was moving much more towards his position. Secretary General noted that as well yesterday. Just a quick follow-up, if I may. The XM Bank is another one. That's an institution that hasn't changed at all. So I'm wondering, on some of these other policy shifts where you haven't seen the type of change you're talking about with NATO, what should we make of those kinds of shifts? And again, are there any policy areas that are non-negotiable, that are off limits? Well, there's always going to be. I think that there's going to be areas where I think, again, it depends on the outcome. In the case of NATO in particular, as I pointed out, it's the most illustrative. I think you look at the president's position, where he wanted to see NATO in particular evolve to, and it's moving exactly in the direction that he said it was in terms of its goals of increasing the amount of participation from other member countries, and two is having a greater focus on terrorism. तो अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इसको कहा जाता है, GBU-43। हमारे साथ मधु भाटिया आजाद सीधे अमेरिका से जुड़ चुकी हैं। मधु, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ब्रीफ किया गया, क्या कहा गया? उन्होंने फिलहाल यही कहा है कि ये जो बॉम्ब है ये पूरी एहतियात के साथ गिराया गया था, और ये आईसिस के जो केव्स हैं, जो उनको खबर आई थी कि वहां पर उनकी गुफाएं हैं, उनको टारगेट करने के लिए गिराया गया था। लेकिन फिलहाल डैमेज कितना है और कितना टारगेट उनका सक्सेसफुल रहा है, वो एनालिसिस अभी चल रहा है। उसके बारे में डिटेल जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में बाद में दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यही बताया गया है कि ये बॉम्ब जो है ये काफी सालों से टेस्टिंग में था, लेकिन हाँ, इस्तेमाल पहली बार किया गया है। इसको बनाया गया था इराक के खिलाफ जब जंग चल रही थी, उसमें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग तक ही उसको रोक दिया गया था, और फिर पर्शियन गल्फ एरिया जो है वहां पर उसको भेज दिया गया था। लेकिन अब ये बॉम्ब जो है पहली बार इसका इस्तेमाल बिल्कुल गाइडेड तरीके से किया गया है।
और इसके अलावा मधु, कुछ पेंटागन की तरफ से कोई जानकारी की, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई ट्रंप सरकार की इसको कहा जाएगा, जिस तरह से ये सबसे बड़ा हमला अब तक का आईएसआईएस के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जाएगा अमेरिका ने जो किया है, क्योंकि अब तक जो सीरिया में उनका हो रहा था, जिसके साथ रशिया के साथ उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है कि आईसिस के खिलाफ उनकी जंग रुके नहीं। तो इसलिए ये फिलहाल एक कदम उठाया गया है, लेकिन पेंटागन यही कह रहा है कि फिलहाल ये जो पूरा एनालिसिस है, जो अलकायदा को टारगेट करने के लिए केस थी जिसका अब आईसिस इस्तेमाल कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने ये बॉम्ब गिराया है। और पेंटागन ये भी कह रहा है कि अब वो यूएस मिलिट्री ट्रेनर्स को अफगानिस्तान में भेजेंगे, ताकि जो डैमेज हुआ है केव्स को, जो नुकसान वहां पहुंचा है इस बॉम्ब के बाद, उसका डैमेज असेस किया जा सके। यानी अभी इससे तक बॉम्ब गिराना पहली कार्यवाही थी, इसके बाद ग्राउंड पर कार्यवाही का एक संकेत पेंटागन दे रहा है, लेकिन ये एक औपचारिक तौर पर जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक अगला कदम अमेरिका और पेंटागन की तरफ से क्या होगा ये साफ नहीं है। और इस बम का अब से पहले किसी भी युद्ध में इस बम का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, पहली बार है जब इस बम का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ राजन सिंह मधु भाटिया जहां लगातार हमारे साथ है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजन सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजन, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए अमन, जो नागरहार प्रांत का हस्का मियां और बाटी कोट जिला है, जहां पर आईएसआईएस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलता था, और हाल ही में जब आईएसआईएस का भारत में केरला मॉड्यूल के जो 21 लोग भाग कर गए थे, तो वो यहीं पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और जो ये बम गिराया गया है, बताया जा रहा है कि बाटी कोट में जो आईएसआईएस का ट्रेनिंग कैंप था, जो कि गुफाओं में चल रहा था, वहां पर गिराया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है अमेरिका की तरफ से। और अगर जो भारत से, जो केरला से गए हुए थे आईएसआईएस के मॉड्यूल के लोग, अगर वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि पुख्ता जानकारी थी कि वहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई में उनके मारे जाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। जो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एक इसमें से हफीजुद्दीन पहले ही जो वहां पर ड्रोन अटैक हुआ था तो उसमें मारा गया था, लेकिन बाकी 20 जो वहां पर बचे हुए थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है बाटी कोट में, वहां पर निश्चित तौर पर अगर अमेरिका की इस कार्रवाई में हो सकता है कि भारतीय जो आईएसआईएस के मॉड्यूल था वो भी इसमें पूरे तौर पर खत्म हो गया होगा। तो राजन सिंह बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आईएसआईएस के जो ट्रेनिंग कैंप्स, जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं वहां उसको टारगेट करके ये अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम जो है वो वहां पर टारगेट किया गया। 9,500 किलो का ये बम, अमेरिका का हमला, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रीफिंग हुई, उससे जो जानकारी मिली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।